Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my new series of videos. The title is called Business Law. Already I have covered the basic concept of the contract, classification of the contract and essential elements of contract. Today I am going to discuss very important topic is called offer. After the completion, this one is also first essential element of the proper offer and acceptance. Remind it, proper offer and acceptance is the first essential element of the contract. So today in this video I am going to discuss about offer. Let's start. First of all, we need to know what is offer exactly. Offer क्या है? Offer is a starting point of an agreement. Offer is a starting point of an agreement. It is also called proposal. Already I have explained, for formation of the contract there must be two party. There must be two party. One party is going to offer something and second party is intend to make acceptance on the offer. मैंने बताया था कि दो पार्टी, सपोज आई वांट टू सेल माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज टू रमेश. तो देर आर टू पार्टी, सौरभ एंड रमेश. Saurabh is want to sell his bike for 50,000 rupees and Ramesh want to purchase. Ramesh say, yes, I am agree to purchase your bike for 50,000 rupees. It means there are two party. The Saurabh is going to make a offer. That's why the Saurabh is called offerer and the second party is Ramesh. Ramesh is called offeree. It means promiser is called offerer and promisee is called offeree. Okay, but as per section 2 subsection A, the legal definition of the offer we need to understand. I have already written here, but ये complete definition नहीं है. ये definition, इस definition को हमने part में part करके अलग कर दिया है for the proper understanding and for the analysis of the definition purpose. Okay, let's start. The first thing, it must be made by one person to another person. It must be, offer must be made by one person to another person. In other words, there can be no proposal by a person himself. It means there must be two party. There must be two party. Offer कभी भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफर करेगा, न कि सेल्फ को. सपोज सेम एग्जांपल, आई वांट टू सेल माय बाइक फॉर 50,000 रुपीज टू रमेश. तो सौरभ ने रमेश को ऑफर दिया. क्या ऐसा होता है कभी कि आई वांट टू सेल माय बाइक 50,000 टू हिमसेल्फ फॉर 1 लाख रुपीज और 50,000 रुपीज? तो क्या हम स्वयं को ऑफर दे सकते हैं? नहीं. मतलब जब भी ऑफर होगा तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए ऑफर होगा. ये पहला इसेंशियल एलिमेंट भी है किसी भी एग्रीमेंट का. देयर मस्ट बी टू पार्टी. दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो पार्टी होना चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. एंड द सेकेंड वन इज, इट मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ रेडीनेस और विलिंगनेस टू डू और abstain from doing something. There are two legal word here. The first thing is willingness to do something or abstain from doing something. It means किसी कार्य को करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए. समझाता हूं, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है. कि किसी कार्य को करने के लिए या उससे विरत रहने के लिए. कार्य को करने के लिए मीन्स व्हाट? द पॉजिटिव एक्ट. द पॉजिटिव एक्ट इज व्हाट? विलिंगनेस टू डू समथिंग इज कंसीडर एज अ पॉजिटिव एक्ट. एंड abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, इट मीन्स किसी कार्य से विरत रहने के लिए या अर्थात किसी कार्य को न करने के लिए. इट मीन्स इट इज कंसीडर एज अ निगेटिव एक्ट. तो ऑफर पॉजिटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है, ऑफर निगेटिव एक्ट के लिए भी हो सकता है. एग्जाम्पल देता हूं. सेम एग्जाम्पल बार बार इसीलिए दे रहा हूं कि बात समझ में आए. आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज टू रमेश. इट मीन्स कि
आई एम रेडी टू सेल माई बाइक. इट मीन्स विलिंगनेस टू डू समथिंग. विलिंगनेस टू डू समथिंग. मैं अपनी बाइक 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं रमेश को. रमेश रेडी हो गए तो रमेश भी क्या है, विलिंगनेस टू परचेज. तो ऑफर तो मैं दे रहा हूं तो हमारी तरफ से क्या है, विलिंगनेस है. तो दिस इज कंसीडर एज अ पॉजिटिव एक्ट. मैं अपनी बाइक 50,000 रुपए में बेचना चाहता हूं. इट मीन्स कि आई एम रेडी टू सेल माई बाइक. इट मीन्स expression is what? Expression is willingness. Now the second one for the negative act. Suppose करिए कि दो व्यक्ति हैं, पार्टी A and पार्टी B. There are two party, पार्टी A and पार्टी B. पार्टी A ने 1 लाख रुपए B को उधार दिए हैं. पार्टी B ने प्रॉमिस किया कि अगले महीने की 1 तारीख को हम आपको आपका पैसा 1 लाख रुपए दे देंगे. पार्टी बी क्या किया, पार्टी बी वो 1 लाख रुपए वापस नहीं कर पाया. तो ए ने बोला कि चलो ठीक है 15 दिन और ले लो और उसके बाद दे देना पैसा. 15 दिन का फिर ग्रेस टाइम मिला. उसके बाद भी ये 1 लाख रुपए दे नहीं पाए. तो ए ने कहा नाउ ए इज इंटाइटल टू सूट अगेंस्ट द बी फॉर रिकवरी द 1 लाख मनी बिकॉज बी इज बाउंड टू डू दिस एक्ट because the contract is already met. तो कहने का मतलब यह है कि अब ए कोर्ट में जाने को तैयार हो गया. तो बी ने क्या कहा, देखिए बी का ऑफर देखिएगा, यही एग्जांपल है. बी ने कहा कि 15 तारीख को नहीं, हम आपको 20 तारीख तक 1 लाख रुपए दे देंगे. आप हमारे खिलाफ कोर्ट में केस मत करिए. कोर्ट में केस मत करिए. कोर्ट में केस मत करिए. मत करिए का मतलब क्या है, द एक्सप्रेशन इज व्हाट, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. भाई हम 1 लाख रुपए इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ मुकदमा दायर न करें. इट मींस यहां पे एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्ट. यहां पे ये क्या है, ये नेगेटिव एक्ट का प्रॉपर एग्जांपल है कि किसी कार्य को न करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है. ऑफर may be positive, may be negative. And the last one, it must be made with a view to obtain the consent of that other person to propose act or abstinent. देखिए यहां पे एक बात लिखी हुई है, a view to obtain the consent. A view to obtain the consent या assent, दोनों बातें लिखी रहती हैं. With a view to obtain the assent or obtain the consent मतलब क्या है, मतलब कि जो पार्टी ऑफर दे रहा है, मीन्स कौन पार्टी हुई भाई, ऑफरर. गुड. तो ये पार्टी है ऑफरर. तो ऑफरर क्या कह रहा है कि ऑफरर की तरफ से क्या होना चाहिए कि जो ऑफर होना चाहिए विद द व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट, आपसे सहमति लेने के आशय से कही गई बात. हम जब बोल रहे हैं कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर 50,000 रुपीज टू रमेश, तो क्या है, हम रमेश से सहमति चाहते हैं. ऑब्टेन विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट. भाई सहमति मिले ना मिले ये अलग बात है, एक्सेप्टेंस हो या ना हो अलग बात है, लेकिन हमारा जो आशय होना चाहिए विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, ऑब्टेन द कंसेंट फ्रॉम द अदर पार्टी. ये तीसरी मुख्य बात है. अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, ऐसा हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो किस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है. कभी कदार हम मजाक में ही कहते हैं भाई बाइक से हम 2 दिन से आ रहे हैं, 3 दिन से आ रहे हैं, वो लगातार खराब है, महीनों से परेशान हो गए हैं हम. कोई मित्र हमसे मिला तो हमने उससे बोला कि यार हम इतना इससे परेशान हो गए हैं कि अगर कोई 2,000 रुपए भी देगा तब भी हम इसको हटा देंगे, बेच देंगे. तब आपका दोस्त बोला कि हाँ ठीक है बेच दीजिए 2,000, लीजिए 2,000. तो ये जो ऑफर था या मजाक में या फ्रस्ट्रेशन में कही गई बात, ये वैलिड ऑफर नहीं है, क्योंकि ये विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट यहां नहीं है. हम आपसे सहमति के आशय से नहीं बोले थे, हमने ऐसे ही बोल दिया था. इट्स ऑल्सो कॉल्ड मेयर डिक्लेरेशन. इट्स ऑल्सो कॉल्ड मेयर डिक्लेरेशन इन द लॉ. तो जब भी जोकली हो,
फ्रस्ट्रेशन में हो या इस प्रकार से हम कोई ऑफर दे रहे हैं तो इट इज नॉट कंसीडर एज अ वैलिड ऑफर। 3 बातें याद रखनी है। पहला, इट मस्ट बी वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेकेंड वन, it is willingness to do something or abstain from doing something. Third one, with the view to obtain the assent. तो this is the basics of offer. एक बात और बताते हैं कि how to make a offer. बड़ा ही आसान है, सिंपल है। how to make a offer, ऑफर कैसे देंगे भाई? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफर कैसे देगा? सिंपल है, या तो एक्सप्रेस करके देगा या तो इम्प्लाइड होगा। At the time of classification of contract already I have explained. लेकिन फिर से एक बार बताते हैं आपको, एक्सप्रेस ईदर ओरल और रिटन, या तो हम लिख के ऑफर देंगे या तो बोल के ऑफर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस ऑफर। सेकेंड वन इज इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या है? इम्प्लाइड ऑफर मीन्स विद द कंडक्ट ऑफ द पीपल, विद द कंडक्ट ऑफ द पीपल, आपके व्यवहार से पता चलता है। जैसे मैंने बताया था पहले भी पिछली वीडियो में कि जैसे भाई कैंट पे हम गए, हमको इलाहाबाद जाना है, बस खड़ी हुई है इलाहाबाद की, हम उसमें बैठ गए, तो क्या ऐसा होता है क्या कि मतलब जो उसका टिकट कलेक्टर होता है वो खड़ा हो और बोले कि ऐसा है कि अब इस हलफनामा पे साइन करिए, 3-4 लोग की गवाही होगी तब आप इलाहाबाद जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं है, इट इज इम्प्लाइड ऑफर। भाई अगर उत्तर प्रदेश परिवहन ने बस वहां खड़ी की है इलाहाबाद डेस्टिनेशन के लिए, तो वो आपके लिए इम्प्लाइड ऑफर है। अगर आप उसमें बैठते हैं इलाहाबाद जाने के लिए, तो ये भी इम्प्लाइड है कि जो रिकमेंडेड फेयर है वो आपको देना पड़ेगा। वो आपने कहा चाहे नहीं कहा, आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं देंगे, इट इज इम्प्लाइड। तो दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर। तो ऑफर, हाउ टू मेक एन ऑफर, मे बी एक्सप्रेस और मे बी इम्प्लॉयड। तो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑफर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।